Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So on behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendants here. I am Anagha representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about the most important topic, how to start the new financial in Tally Prime. So before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and developments. We are also in the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bitrix 24 CRM and Skill India. So moving ahead with the today's topic. So now the speakers are here. So Aarti, are you here? Yes, ma'am, I am here. And the live demonstration will be done by Mr. Ajaj. So Mr. Ajaj, are you here? Yeah, ma'am, I am here. Okay. And the resource person, Mr. Bhagwati Dandaria. Sir, are you here? Yeah, I am available, Anga. Thank you. Okay. Hearty welcome all of you. So now I request both of you to move ahead with your presentations. Thank you, ma'am. Ma'am, my screen is visible? Yes, it's visible. Okay, thank you. Hello everyone, myself Aarti Narode, representing on behalf of Rajlakshmi Solution Private Limited. Here is our Rajlakshmi family. Welcome to all of you. So today's topic is how to start new financial year in Tally Prime. First slide, how to change financial year. With Tally Prime, you can quickly close the books of account for a financial year and move your company data to the next financial year. You can achieve this in multiple ways in Tally Prime. Handling your tax liability or input credit when company data is split at the beginning of new financial year is also simplified in Tally Prime. Tally Prime में न्यू फाइनेंशियल ईयर चालू करना बहुत आसान है और आपका जो लायबिलिटी और इनपुट क्रेडिट फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के बाद भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर में आ जाता है. नेक्स्ट है how to change financial year. Tally Prime comes with a useful tool called Split, which will help you manage the volume of your data. If your business likes a fresh start every financial year, then you can split your data and maintain a fresh batch of data every year. Tally Prime के अंदर हर साल आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं तो हर फाइनेंशियल ईयर का डेटा आपको Tally Prime में देखने के लिए मिल जाएगा. बिफोर स्प्लिटिंग द डाटा, द वेरीफाई फीचर्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स एंड एनी एरर इन द डाटा always you to correct them quickly. Tally Prime के अंदर आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के पहले आप डाटा वेरीफाई कर सकते हैं. अगर आपके डाटा में कुछ एरर है तो वो आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाता है. अगर आप उसमें वो एरर को आप रिसॉल्व भी कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड है एडवांटेज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डाटा. रिड्यूस डाटा साइज. मल्टीपल ईयर टैली डाटा विल टेंड टू make Tally works slow. Splitting of data will reduce data size and encourage the speed. अगर आपका मल्टीपल ईयर का डेटा एक ही कंपनी में है तो आपको स्पीड कम मिलती है. अगर आप डाटा को हर साल स्प्लिट करते हैं तो आपका डाटा की साइज कम हो जाती है और आपको अच्छी स्पीड भी मिलती है. Secure all data and start work in a different folder. Splitting of data will ensure the security of data of the
प्रोवाइड प्रीवियस ईयर। इसमें आप अपना पुराना डेटा सिक्योर रख सकते हैं। मेंटेन सेपरेट फोल्डर फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। आप जो आपका फाइनेंशियल ईयर का डेटा है वो आप फोल्डर वाइज भी रख सकते हैं। सिक्योरिटी सेटअप विल बी automatically carried folder in the new split company। आप नए स्प्लिट कंपनी में जो सिक्योरिटी सेटअप है वो ऑटोमेटिकली न्यू कंपनी में आ जाता है। थैंक यू। Akash, you can share your screen now. Yeah, okay. Now you visible my screen? Yes, it's visible. Yeah. Hi everyone. This is Mohammed from Rajlakshmi Solutions Private Limited. I just welcoming you all in this session. आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टैली प्राइम में कैसा नया फिनेंशियल ईयर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले नया फिनेंशियल ईयर मतलब है आप जब भी जो भी लास्ट फिनेंशियल ईयर का ट्रांजैक्शन पूरी आपको फिनिश करना पड़ेगा। जब भी आप डेटास को आगे है ना फिनिश नहीं करेंगे वो उस टाइम आपको लास्ट ट्रांजैक्शन की क्लोजिंग आपको नया फिनेंशियल में आपको तो लेके आ गया नहीं। सो उसके लिए ध्यान से आपको लास्ट क्लोजिंग ईयर की पूरा ट्रांजैक्शन आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप बताना चाहेंगे जो भी परचेस हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, पेमेंट एंट्री और ये तो रेसिप्ट कॉन्ट्रा इंटरेस्ट जो भी रहेगा पूरी ट्रांजैक्शंस आपको फिनिश करके रहना पड़ेगा मार्च 31 तक। जो भी डेटा इसमें तो मिसिंग हो जाएगा सो आप पहले वो डेटा को पूरा एंट्रीज आपको कर देना पड़ेगा। उसके बाद ही हम स्प्लिटिंग के लिए हम जाना पड़ेगा। इसमें फॉर एग्जांपल के मैं दिखा देता हूँ। इसमें लेजर्स रहता है, इसमें ऑलरेडी ABC बोल के कस्टमर रहते हैं, इसमें संडे डेप्टास का कस्टमर, इसमें ओपनिंग है 50,000 हम आके ना देखे हैं, ओपनिंग में 50,000 देखे हैं। तो ये तो संडे डेप्टास हो गए और सेंडर क्रेडिटर्स पे इसमें भी ओपनिंग रहेगा 50,000। इसका बेस करके हम जो भी कस्टमर्स का परचेज सेल्स जो भी हम आपको आगे ना करेंगे इसकी पेमेंट रिसीप्ट पूरे हम आगे ना लास्ट फिनेंशियल ईयर में कंप्लीट करके रहना पड़ेगा। कोई आउटस्टैंडिंग भी रहेगा पूरा हमको आके ना फिनिश करके रहना पड़ेगा। विदाउट फिनिशिंग हम डेटा स्प्लिटअप को नहीं करना है। सपोज करने से आपको क्लोजिंग ओपनिंग में आपको सही तरह से नहीं आएगा, उसके लिए वो थोड़ा ध्यान से हमको करना पड़ेगा। सो यही आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, डेटा स्प्लिट में यही आपको इम्पोर्टेंट है। पहले दिखा देता हूँ इसमें जो ट्रांजैक्शंस होके रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं कस्टमर का सेल्स किया हूँ, ये हम 31 मार्च को हम सेल्स किए हैं। ओके, उसके बाद परचेज भी हम किए हैं, कस्टमर का परचेज भी किए हैं। सो इसका अगेंस्ट पेमेंट भी हम करके हैं, इसका रिलेटेड हम पेमेंट भी हो चुका है, पेमेंट भी किए हैं एज वेल एज रिसिप्ट भी हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डेटा कैसा ओल्ड फिनेंशियल ईयर से प्रीवियस ईयर फिनेंशियल ईयर से नया फिनेंशियल ईयर को कैसा टैली में चेंज करना है, मतलब डेटा को कैसा आपको ये तो स्प्लिटअप करना है। पहले उसे एक सेफ्टी पर्पस के लिए एक बैकअप ले लियो। जब भी डेटा बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जब भी एक बैकअप लेके आप सेफ्टी कराइए। उसके बाद डेटा को चेंज करने, डेटा को आपको स्प्लिट करने से पहले यहाँ में डेटा बोल के एक ऑप्शन रहेगा, यहाँ में स्प्लिट बोल के रहेगा। पहले वेरीफाइड डेटा देना पड़ेगा। इससे पहले का स्लाइड में है आपको जायरा मैम दिखा के रहेंगे वेरीफाइड डेटा का क्या ये तो यूजफुल क्या है। जब भी एक लेजर का इशू हो जाएगा, ये तो ट्रांजैक्शन का इशू रहेगा, टैक्स का इशू, जो भी इशू रहेगा आपको वेरीफाइड डेटा करने से आपको क्लियरली टैली में आपको दिखा देगा। यही आपको आपको बहुत बड़ी यूजफुल थिंग है। इसमें वेरीफाइड डेटा करने से क्या एरर है हम इजी हमको पता आ जाएगा, वो बेस करके हम उसकी एरर को हम ये तो रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। सो पहले डेटा स्प्लिटअप करने से हम आपको वेरीफाइड डेटा देना पड़ेगा। जो डेटा हम ये तो स्प्लिटअप करेंगे वो डेटा का कंपनी को हम सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कीजिए, वो तुमको पूरा डेटा उसको वो एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद जो भी वो एरर रहेगा वो एरर यहाँ में शो हो जाएगा। बेस्ड ऑन क्या एरर रहता है, फॉर एग्जांपल कोई एरर रहेगा संडे डेप्टास का जगह पे संडे क्रेडिटर्स हम आके ना लेके रहेंगे,
बिजनेस करने टाइम को जो भी हम टेंशन में भी रॉन्ग से भी हम लेके रहेंगे, वो टाइम हम ध्यान दे के नहीं रहेंगे। अभी इस टाइम हम देखने से यहाँ में हमको पता आ जाएगा क्या एरर क्या हुआ है वो बेस करके हम उसकी ट्रांजैक्शन को सही करने के बाद फिर से जाके हम एक डेटा में जाके स्प्लिट अप फिर से वेरीफाइड डेटा हमको देना पड़ेगा। उसकी ट्रांजैक्शन सही होने के बाद वंस टाइम एक बार इधर चेक करना पड़ेगा। उसके बाद इस तरह नो एरर्स फाउंड बोल के आपको टैली में दिखाना पड़ेगा। ये दिखाने के बाद आप टैली में स्प्लिट अप कर सकते हैं। सेम इशू यहाँ में डेटा बोल के जाना पड़ेगा, यहाँ में स्प्लिट बोल के एक ऑप्शन रहेगा, यहाँ में स्प्लिट डेटा बोल के देना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? Ajaz, you can carry on. हाँ ओके सर। यहाँ में कंपनी जो डेटा हम यहाँ में तो स्प्लिट अप करेंगे, वो कंपनी को हम आके ना सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्प्लिट अप ईयर ऑटोमेटिक टैली आपको डिस्क्राइब कर लेगा। न्यू फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग ईयर वो आपको ले लेगा। सो यहाँ में सिर्फ एक्सेप्ट कर दो। कंटिन्यू टू स्प्लिट कंपनी डेटा यस और नो बोल के पूछेगा, यहाँ में यस कर दो, आपको स्प्लिट अप हो जाएगा। बस टैली में स्प्लिट अप इतना ही है। ये होने के बाद क्या होगा, यहाँ में नो वाउचर्स एंटर बोल के लास्ट में एक डेटा आपको शो होगा। ऑटोमेटिक टैली आपको नया फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग डेट आपको टैली कंपनी का नेम का बिगिनिंग में आपको शो हो जाएगा फ्रॉम 1/4/23। सो आपको चेक करने में थोड़ा इजी रहेगा। जो स्प्लिट अप हुआ वो कंपनी हम चेक कर सकते। अभी हमें जो भी वाउचर्स नहीं एंट्री होके रहेगा, सो क्लोजिंग आपको ऑटोमेटिक ओपनिंग से आपको आके रहेगा। यहाँ में बैलेंस शीट में जाने से आपको क्लोजिंग आपको आके रहेगा। इसमें ट्रांजैक्शन कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ उसकी क्लोजिंग ड्यूटीज एंड राइट्स की क्लोजिंग माने आपको ओपनिंग से आके रहेगा। सपोज आप आगे ना जो भी ट्रांजैक्शन आप ये तो मिस करके रहेंगे, डेटा स्प्लिट अप हो जाएगा, आप फिर से जाके ओल्ड डेटा में आपको ट्रांजैक्शन करेंगे, उसकी बैलेंस आपको नया डेटा में ऑटोमेटिक आपको ये तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बिना आप मैनुअल से डालना पड़ेगा। जो भी मिसिंग हो गया उसकी बैलेंस अब जो भी रहेगा वो आपको मैनुअल आपको डालना ही पड़ेगा। वो डालने के बाद ही आपको मैच होगा, फिजिकली डालना पड़ेगा। बस डेटा स्प्लिट अप इतना ही है। डेटा न्यू फाइनेंशियल ईयर ये एग्जिस्टिंग डेटा है, एग्जिस्टिंग डेटा में आप इसी तरह ही करना पड़ेगा। ये एग्जिस्टिंग, इसमें कोई डाउट्स है कि एग्जिस्टिंग डेटा स्प्लिट अप इसी तरह ही करना है? मैं नया डेटा में आपको कैसा करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। जो भी एक कंपनी आपको नया से कंपनी आपको शुरू होगा, जो भी बिजनेस करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में नया सा आपको करेंगे, मतलब वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा न्यू फाइनेंशियल ईयर ओपनिंग करेंगे। वो सिर्फ यहाँ में क्रिएट कंपनी पे जाओ, जो भी कंपनी आपका कंपनी का नेम दे दो, कंपनी का नेम सारी डिटेल्स यहाँ में फिल कर लियो। यहाँ में फाइनेंशियल ईयर आप 1/4/2023 बोल के यहाँ में दे, बस उतना ही है। ये आप देने से ऑटोमेटिक नया कंपनी आपको क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको नया ईयर आपको क्रिएट हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन आपको ट्रांजैक्शंस, आपका लेजर्स, मास्टर्स ऊपर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यही आपको 2 वे का डेटा नया ईयर आपका नया फाइनेंशियल ईयर शुरू करने का प्रोसेस है। इसमें कोई डाउट्स है क्या? Ajaz, you can carry on. We will ask the doubt in the end of the session. Okay. ओके सर, मेरा सेशन हो गया है, डेटा स्प्लिट अप कर चुका हूँ मैंने। Okay, great. हो गया। Yeah. Okay. Thank you, Ajaj and Aarti, for your presentation. Thank So it's a time for overview of the today's session. It's over to you, sir. Yeah. Thank you, Anga and team. So myself is Bhagwati Dhandaria from Rajya Lakshmi Solutions Private Limited. So today's session is a data splitting, how to change the financial year. चूंकि अपकमिंग आपको भी हमें सबको पता है कि 1 अप्रैल से हमारा कंप्लीट नया प्रोसेस फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट होता है। तो वी हैव ए वेरियस टाइप ऑफ द वे। हर कंपनी का अपना एक नया फाइनेंशियल ईयर टैली के अंदर स्टार्ट करने का अपना एक तरीका है। कुछ कस्टमर एक नई कंपनी बनाते हैं और उसमें डेटा लास्ट ईयर का जो डेटा है उसका क्लोजिंग एक्सपोर्ट करके इसमें एज ए ओपनिंग इंपोर्ट करते हैं। कुछ कस्टमर
डेटा को स्प्लिट करते हैं फाइनलाइज करने के बाद। कुछ कस्टमर सेम डेटा को कैरी ऑन करते हैं सिर्फ पीरियड चेंज करके, जहां पर पूरा का पूरा उनके एक ही डेटा में रहता है पूरा फाइनेंशियल ईयर, लास्ट ईयर और करंट ईयर। सिर्फ पीरियड चेंज करना होता है, ईयर फाइनेंशियल ईयर चेंज करने होते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ द वे है जिसमें आप इजी गोइंग फाइनेंशियल ईयर जैसे ही चेंज हुआ, सेम टाइम में यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विदाउट एनी इंटरप्शन और डिस्ट्रैक्शंस। सो आज का जो सेशन हमने इसीलिए लिया कि आप इजी गोइंग 1 अप्रैल के दिन में आप अपना काम को विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस आप अपने बिजनेस को चालू रखें, और उसमें आपके वाउचर नंबरिंग्स हैं या आपके डेटा जो आपको नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में कैरी ऑन करना है, वो सभी चीज़ों को कंटिन्यू कर पाए। तो दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ द टुडे सेशन। इज अ वेरी स्मॉल सेशन बट वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। सो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चंस पूरे आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस रहेंगे, डेफिनेटली आप हमारे जो भी अकाउंट मैनेजर आपके साथ कनेक्टेड हैं उनसे आप बात कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे न्यू ईयर फाइनेंशियल ईयर, न्यू फाइनेंशियल ईयर आपके टैली में स्टार्ट करने के लिए अकॉर्डिंग योर वी। एंड नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द कुछ नई चीज़ें जो फाइनेंशियल एंडिंग में आज की डेट में टैली ऑन क्लाउड सबसे ज़्यादा मार्केट में लोगों की डिमांड है। एवरीबडी वांट टू यूज द क्लाउड एनीवेयर इन एवरीवेयर। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिस मंथ वी आर ऑफरिंग 12 month पर 6 month free. So it's a big offer for the everybody's. You can buy Tally on Cloud, enjoy anywhere, anywhere in everywhere. You can use your Tally 24/7 without any hurdles. So you can connect with us regarding that demo. And there is a lot of products are there, lot of features are there, lot of the lot of supports and modules are there. So you can also touch with us and you can get the advantage of our expertise and grow your business very smoothly. That's why we all are here. Thank you very much. It's over to you, Anka. Okay, thank you, sir. If anyone have any questions, please raise your hands or mention in the chat box. Sir, whether there are any questions? No, Anka. Okay. So soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media to get the updates. Thank you so much for joining us today's session. So now we'll wind up the session. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. See you soon in the next session. Thank you. Bye-bye.